Mirzapur is back after 4 years. Have you guys purposely done this to us? Because I have forgotten Mirzapur 2. Now I have to go back, watch Mirzapur 2. Then I have to take out time to watch season 3. I mean, this is just unfair. That's the idea. कि आप वापस जाके दोबारा सीजन 1 इनको व्यूज पे व्यूज ही चाहिए कि और व्यूज बढ़ाते रहो. I mean, it is crazy, but 4 साल में इतना कुछ हो गया है. आप लोगों ने इतने सारे फिल्में, shows सब कर चुके हैं. Where I remember all of you from your shows that have happened, and I've forgotten everything about Mirzapur. आपको छोड़ के इनको कौन भूल सकता है जी. लेकिन सर कड़क सिंह हो गया है. I mean, कितना कुछ हो गया है, राइट? आपको नहीं लगता ये अनफेयर है थोड़ा कि 4 साल लग गए? बिकॉज यू नो लोग जब मिर्ज़ापुर देखते हैं, मैं अभी उन दूसरे एक्टर्स को भी यही बोल रही थी कि हमें लगता है अब जब मिर्ज़ापुर ख़त्म हो जाता है तो हमें लगता है कि अब मैं क्या करूँ लाइफ में, अब आगे कैसे बढ़ेगी लाइफ, अब मैं क्या करूँ, तो ऐसे हो जाती है. सो 4 साल बहुत ज़्यादा होता है. हाँ, अधिक तो होता है. हम प्राइम वीडियो से हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इतना, और राइटर्स से कि जल्दी जल्दी लिखो और जल्दी करो. नहीं, 4 साल में बीच में कोविड का भी टाइम था ना. हाँ. तो कोविड ने कलेक्टिवली हम सबके 1.5 साल तो ऐसे ही चले गए, तो वो भी एक कारण था, वरना आई थिंक इतना लेट ना होता. But when you're coming back to a show like Mirzapur, which is so iconic, and it's one of those first shows that, you know, of a web series that made that impact in every household, every corner of India has watched it. And coming back after doing so many things, is this nostalgic? Is it difficult? Or is it actually easy to come back? Let's start with you. Actually, all of that. Yeah? Nostalgia. There is a bit of nostalgia. Personally, if I talk about my journey, I started my journey with Mirzapur as an audience. Yeah. So I was like, though I was part of the first season, but I was my major part of my system was the audience. So from there, I became an integral part of the show. And when you are coming back to the show, like back to another season, like after season 1, I came back to season 2. There was nostalgia. There was a lot of pressure, I would say, responsibility, because the thing is कि you are stepping into a space where you already have established characters and some really talented actors. So आपके पास समय नहीं है स्थिर होने का. आपको आते के साथ ही ये हर बॉल पे मिनिमम छक्का ही मारना है. So it becomes challenging. There is a responsibility also, but yes, you are enjoying the process because the entire space, that entire world of Mirzapur, be it the writing, the director, and obviously, see, I always believe that you are as good as your co-actor, and I mean, it's the best opportunity to be in that situation, that you will be of certain standard, not because of your own craft or talent, but majorly because of your co-actor, because ज़्यादातर वो कमाली होंगे मिर्ज़ापुर में. So yeah, it's an enriching experience, I would say. Nostalgia, challenges, responsibility, but end of it, if you put everything together collectively, it's fun and satisfying. Satisfying. What about you, Priyansh? I was just saying this, and I will again repeat it कि मेरे लिए ये first time था कि I was repeating a character in a consecutive season, and बीच में जो भी और कुछ shoot किया उसके बाद to come back to it was of course exciting, and क्योंकि कमाल का set है, कमाल के लोग हैं, पर एक challenge था, as you said, you know, nostalgia तो था ही, लेकिन वो challenge ये था कि अब इस character को इतना memorable बना दिया, people have loved him for whatever he is. How do you retain that, the essence of it? But at the same time, what new can you do with it? अब इसके साथ क्या नया खेल सकते हैं, इसके और क्या shades निकाल सकते हैं? I think that was interesting because मैंने कभी ऐसे किया नहीं था. Then even though वो क्या सोचता है, वो क्या बोलता है, वो सब बनाता है, अब उसमें हम क्या नया कर सकते हैं? And I like the way, again, season 3 के बारे में, without giving spoilers, that how it's going to go, and how Guru and everybody, the writers, have thought about, you know, taking everybody into a deeper level in many phases. मुझे लगता है वो ही एक, जब आपको ऐसा सागर मिल जाता है तो फिर आप जब आप बस कूद जाते हो, फिर आप स्विमिंग करते हो सबके साथ और आपको मज़ा आता है उस चीज़ करने में. मुझे वो प्रोसेस बड़ा पसंद था, और जब मैं रॉबिन पहली बार भी बना था वो प्रोसेस बड़ा पसंद आया. इस बार तो और ज़्यादा पसंद आया. अब बस देख रहे हैं, आई एम होपिंग. मुझे लगता है नर्वसनेस भी ज़्यादा हो जाती है, एक्साइटमेंट तो है ही, क्योंकि जैसे आपने बोला वो 4 साल हो गए, वो 4 साल का जो इंतज़ार है, अब हम लोगों को वो नहीं कर सकते यार, सरप्राइज हो जाएं, शॉक हो जाएं, लेकिन प्यार भी करें उसके साथ. ऐसा ना हो कि ये क्या कर दिया यार, ये तो हमने सोचा नहीं था, ये गलत हो गया. मतलब मैं चाह रहा हूँ कि वो सब कुछ उन्हें पसंद आए, इतना इंतजार किया, तो आई एम होपिंग, लेट्स सी.
and you are just getting darker and darker by every season with your hair, with your looks. Oh my God. अच्छा है ना? अच्छा, बहुत अच्छा, हमें तो बहुत मजा आ रहा है. But tell me, Rasika, what was it for you? I mean, every season is there's a comfort also कि आप लोगों को जानते हो, actors से familiar हो, director को जानते हो. It was just such a relief for me to have Gurmeet through all the seasons, you know, क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं कुछ कहीं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ तो वो संभाल लेगा. So that's a very big thing and that was there. But otherwise, I mean, every subsequent season मुझे यही डर लगा रहता है कि जो चीज़ें आपके कैरेक्टर के बारे में पॉपुलर हो गई हैं या जो सेलिब्रेटेड हैं वो आप उसके बारे में इतने कॉन्शियस ना हो जाए दैट इट बिकम्स गिमिकी. You know, it's very easy to fall into that space and that is something that one has to be sort of careful of. So how do you forget what people have told you about your character? Or, you know, like if I remember, for example, if I keep thinking, oh, everybody says, oh, Beena so dark and therefore she's so interesting. I can't think that and play that character, right? Yeah. So that I find a little, I'm still trying to find my way around that. How to forget what you know about your character Perception from of the- what the perception of the character, what you feel about the character when you watched the show. So those are the other things. But otherwise, I feel it's a very interesting experience. It's almost like meeting an old friend, you know. कि उनके बारे में आपको कुछ चीज़ें याद हैं, उनके कोर से आप परिचित हो, लेकिन वो नई नई चीज़ें ला रहे हैं इस सीज़न आपके पास, you know. So yeah. And then we have Kalin Bhaiya. He's like the epitome. Like, everybody looks up to this character and सबको dialogue याद है. बहुत pressure build up हो जाता है. आपको लगता है कि आप पे pressure होता है and then you have these new actors who are all looking up to you. प्रेशर तो मुझ पे नहीं होता है. हाँ, he's the coolest. उसको हाँ वो मतलब ही नहीं है लाइफ में प्रेशर लेके क्या फ़ायदा है. जो तो मैं आनंद में रहता हूँ. सो नो वरीज. और क्या था सवाल? बस प्रेशर नहीं होता है. Pressure ही नहीं. कैसे निकाल लेते हैं आप? कैसे कौन सा? कैसे? नो प्रेशर वाला वो गुरु हमने आप पिछले इंटरव्यू में बोला था कि बुद्ध पैदा नहीं होते हैं, बुद्ध बनना पड़ता है. तो मेरे साथ रहो, टेक्निक बता दूंगा. हाँ यही तो करना पड़ेगा. हाँ तो अरे बहुत इम्पोर्टेंट है गुरु. ये लाइफ के आपाधापी में नहीं पढ़ने का. उसके लिए आपको मठ जाना पड़ेगा. मड आना पड़ेगा. मड में मैं अपना कोचिंग मैं ये सेंटर अनुभव कर चुका हूँ. हम कई समय तक एक ही जगह वहाँ रहते हम लोग साथ रहते थे Oh. एक इलाके में. Oh, so I have to go back to that. मैंने अभी दूसरे एक्टर्स से भी बात कर रहे थे. I will again bring up this point that no OTT ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो कितने सारे एक्टर्स को ये जगह दी है to showcase their talent. Yes. And they have written such amazing scripts for OTT कि वो मिला है. For example, पंचायत. ठीक है? यस यस यस. उनके जब मैं वो एक्टर्स से मिलती हूँ और उनसे बातें करती हूँ, कहाँ से वो आए हैं और जो वो ड्रीम लेके आए हैं, उन्होंने कभी खुद भी नहीं सोचा था कि ऐसी जगह पे आ जाएंगे. आई विल नॉट कॉल इट अ स्ट्रगल, इट्स एवरीबडीज जर्नी, राइट? Yes, yes. आई वॉन्ट टू आस्क योर जर्नी, इफ यू लुक बैक, what is that one thing that you will never, that keeps you grounded, that humble thing? Like for example, मैंने किसी एक्टर से बात की थी, उन्होंने बोला था हम 8 जन रहते थे एक 1 BHK में. That's and whenever जब लगता है सिर पे चढ़ने वाला है मुझे अपनी ही ये, तो मैं उस बारे में सोचता हूँ कि कहाँ से मैं आया हूँ. Never forget your roots. So if each of you can give me an experience from your life from this journey, it will be great. नहीं उसमें पंचायत की आप बात कर रही थी. जी. दुर्गेश है, वो अशोक है, जीतू. जीतू है. तो फैजल. ये अद्भुत लोग हैं, बहुत ब्रिलियंट अभिनेता हैं. मैं पहले से इनमें से कुछ को जानता हूँ, थिएटर के दिनों से देखा है. सब टैलेंटेड हैं. पटना का लड़का है बल्लू है, उसका पता नहीं स्क्रीन पे क्या नाम रखा है, हम तो बल्लू बोलते थे. वो भी है पंचायत में. तो बुल्लू तो सब. हाँ क्या ग्राउंडेड होने का एक तरीका आपने पूछा था ना. आप जब देखते हो अपने आप को कहाँ से कहाँ तक आए हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको याद आती है, जो आपको रूटेड रखती है अपने आप से कि ये जो फेम है वो सिर पे ना चढ़ जाए? लेकिन कोई ऐसी इंसिडेंट या कोई ऐसा सिचुएशन जो आपको उसके लिए ना सिर्फ अवेयर रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा. जब फेम माथे पे चढ़ती है तो पता नहीं चलता है. जिस व्यक्ति में अहंकार होता है उससे पूछोगे कि तुम अहंकारी हो तो वो नाराज हो जाएगा कि मैं कैसे अहंकारी हूँ, कैसी बात कर रहे हो आप. क्योंकि जो चीज़ आप में अवगुण होते हैं उस वक्त
आपको पता नहीं होता है इंसान को कि ये मेरी कमियां हैं। तो अवेयर, सजग रहो, बस थोड़ा सा ध्यान कर लो तो सब समझ में आ जाता है कि अच्छा गुरु क्या चल रहा है लाइफ में। बाकी ज़रूरी नहीं है कि कुछ ऐसा याद ही करें अपनी लाइफ का कि हम लेकिन आज आप लोग। मुझे अपना बताइए जर्नी। मेरा? हाँ जी। मेरा जर्नी का, मैं अभी वापस जाऊंगा उसी बोट पे बैठ के जिस बोट पे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का आदमी लौट रहा होगा मेरे साथ में। 100 लोगों के साथ बैठ के आता जाता हूँ आज भी। ये नहीं, इसलिए नहीं जाता हूँ ताकि मैं ग्राउंडेड रहूँ, ऑप्शन कोई नहीं है मेरे पास जाने का। आप गाड़ी में भी जा सकते हो। वो 1.5 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, मुझे खर्च नहीं करने हैं 1.5 घंटे। और मैं बतौर अभिनेता अगर अपने समाज से इतना डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा, काला कांच लगाने लगूंगा, तो मैं समझूंगा कैसे कि दुनिया में हो क्या रहा है। तो वो भी तो ज़रूरी है कि हम अगर हम परफॉर्मेंस में ऑथेंटिसिटी चाहिए तो उसके लिए तो हमको हमारे समाज में आसपास क्या हो रहा है देखना पड़ेगा और उसके लिए जीना पड़ेगा। हम एक ककून क्रिएट कर लें और उसी दुनिया में जिएं। बीच में क्यों फिल्में गड़बड़ होती हैं? क्योंकि लोग सिनेमा से इंस्पायर होकर सिनेमा बनाने लगे। सिनेमा से इंस्पायर होकर सिनेमा नहीं क्रिएट किया जा सकता है। लाइफ से इंस्पिरेशन चाहिए, स्टोरीज वहाँ से आती हैं। And that's exactly what is working for us, right? For these web series जो actual लोगों की कहानी है. You tell me, coming from a small town and making it जमशेदपुर, here- जमशेदपुर ये कमाल है आज की। एक जमशेदपुर की जर्नलिस्ट और एक जमशेदपुर की एक्ट्रेस और एक जमशेदपुर में फेल हुआ आदमी। क्या जमशेदपुर फेल हुए थे? हाँ, मैंने डॉक्टरी का इम्तहान जमशेदपुर में दिया था, मेडिकल का टेस्ट। वो एमजीएम में। हाँ हाँ, और पहली बार, और मैं असफल हो गया। तो मेरी जर्नी में भी अनसेड तरीके से जमशेदपुर का योगदान है। अगर मैं सिलेक्ट हो जाता तो मैं डॉक्टर बन जाता। मैं यहाँ पे बैठती तो आपको यहाँ सफल होना था, इसलिए इधर वहाँ आना सफलता था। जरूरी थी। My God, coming from Jamshedpur, here we are sitting together Yes. with these people, Amazon Prime, but Who would have thought? Who would have thought? But tell me about that, you know, because in a small town like ours, if you say I want to become an actor, they laugh at us. Yeah, that's why I never said it. Because I didn't know it. I really didn't know it. मैं तो मतलब स्कूल प्ले करती थी, मेरे लंबे बाल होते थे तो वो मुझे मदर मैरी बना देते थे क्रिसमस प्ले में। बस यही मेरा एक्टिंग एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। Convent. बट हाँ, बट तो मुझे कुछ बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि एक्टर बनना है। दिस वाज समथिंग व्हिच केम मच लेटर। एक्चुअली द आइडिया ऑफ एक्टिंग केम बिकॉज आई वाज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन सिनेमा, फिल्म्स एंड इंटरेस्टेड इन एफटीआई एज अ स्पेस। मैंने इतना सोचा था यहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स मूवमेंट है, यहाँ पे बहुत एक हेल्दी हिस्ट्री ऑफ डिसेंट है। यहाँ पे अगर विजडम ट्री के नीचे बैठो तो आपको पूरा घटक से लेकर एंटोनियोनी तक सब समझ आ जाता है। सो मेरे को उस जगह के बारे में क्यूरियोसिटी थी और एक आई वाज वेरी मेस्मराइज्ड बाय दैट प्लेस। इसलिए मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। मुझे एक्टर बनना था ऐसा कभी वो मन में था ही नहीं। बट इट्स बिन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। एंड एक आप एक इंसिडेंट पूछ रही थी तो मुझे याद आया कि हम लोग बहुत सारे अमितोष नागपाल, मुकेश छाबड़ा, हम लोग सब ना एक बहुत छोटे छोटे रोल्स प्ले कर रहे थे एक फिल्म में, हाईजैक। तो जब शॉट नहीं होता तो हम लोग एक साथ बैठ के बातें किया करते थे। और उस समय ऑल ऑफ अस यूज्ड टू बी डूइंग मल्टीपल ऑडिशंस। मतलब वो स्टूडियो के दरवाजे पे खटखट आके यू डोंट फिट, यू फिट, एंड मेकअप लगा के 3-4 घंटे गर्मी में खड़े हुए हैं और रोज़ ये चल रहा है। तो एक जोक था हम लोग के बीच में कि बोलते थे कि कोई फ़ोन करेगा और बोलेगा कि मैम आपका शूट में हो गया, तो बोलेंगे नहीं नहीं मुझे ऑडिशन में जाना है। इतनी आदत हो गई थी। तो वो पीरियड था जब ज़्यादा काम नहीं था और हम सब काम ढूंढ रहे थे, उसमें इस तरह के सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ ही हम आगे बढ़ते थे। मुझे याद है हाँ, प्लीज़ बताइए। से कि जब हम नंबर्स बोलते थे ना, टेलीफोन नंबर, तो वो प्रोफाइल लेते हैं ना कि फ्रंटल हो गया एंड दीज आर माय प्रोफाइल्स एंड ये, और नंबर बोलना है कि माय कांटेक्ट नंबर फलाना फलाना। तो एक एक्टर बेचारा इतना स्ट्रगल करते करते नंबर बोल चुका था। अभी चुटकुला था या सत्य था मुझे नहीं मालूम, बट हम अक्सर बातें करते थे। उसके गाँव के कोई मिल गए जोगेश्वरी में, अरे मंटू तू इधर क्या क्या चल रहा है? बोला मैं बस एक्टिंग के लिए लगा हूँ, ऑडिशन दे रहा हूँ। अरे वाह, तो कुछ हुआ क्या? बोला हुआ नहीं लेकिन हो जाएगा थोड़े दिन में चाचा, नंबर दे अपना। तो उसने नंबर बोला, लिखो 982222 एंड दीज आर माय प्रोफाइल। नंबर बोलते उसकी बॉडी मुड़ गई ऐसे, क्योंकि नंबर बोलने के बाद आदत लग गया था। हाँ, मुझे कभी कभी लगता था जब मैं घर जाती थी ना, सोती थी इस तरह, मुझे लगता था अगर मैं दूसरी तरफ मुड़ूंगी तो नंबर निकल आएगा मुझसे।
तो ये किस्से हैं यार, हम सबने देखे। असल में उस वक्त ओटीटी नहीं था, इतने काम नहीं थे, Export ऑप्शन इतना, नहीं या, थे। या। सिनेमा में स्टॉक कैरेक्टर्स होते थे, एक हीरो हीरोइन, हीरो का बाप, इंस्पेक्टर, और तो या फिर पान वाला। हाँ, तो चांस, संभावनाएं कम थी। अब तो पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ गई हैं। कास्टिंग डायरेक्टर्स का सिस्टम भी नहीं था। वो भी नहीं वो था। भी शुरू हो रहा था। मैं थिएटर कर रहा था, लोगों ने बोला वहाँ ऑडिशन हो रहा है, वहाँ चले जाओ। फिर किसी एक इंसान का नंबर मिला था जो हमें बोलता था कि 25 से लेकर 50 साल के आदमी यहाँ चाहिए। मैंने बोला ऐसा कैसे कोई कैरेक्टर हो सकता है कि 25 से 50 सब वहाँ पे हैं। मतलब या तो वो 25 से 30 का होगा या ऐसा होगा, या वो कैरेक्टर है। तो और सब भीड़ में वही खड़े हैं बाहर, भाई वो माड़ा में यहाँ नॉट फिट चल रहा है। श्री जी के पास होता था, एड्स के ज्यादा होता है। एड्स के होते थे, आराम नगर। 91 एक श्री जी 91 हाँ मैंने अभी स्पोकन सबको याद है, एवरीबडी रिमेम्बर्स जी जी दिस। जी मैं तो पिछले साल अपने जो पहला साल था मुंबई का, उसके एक स्क्रिप्ट लिखी थी और परफॉर्म किया था जैम के स्पोकन फेस्टिवल में। आराम नगर के सपने जो मैंने लिखा था, और मैंने लिखा था कि आराम नगर के जो सपने होते हैं कि वहाँ आराम तो कभी होता नहीं है। मैं वहीं रहता था पीछे, और वही था 1 BHK में सब रह रहे हैं, 6 लोग ऐसे लगे हुए। बट मैंने अपने आप को ये समझा दिया था कि टाइम ज़रूर लगेगा। बैंगलोर से आया था मैं, देहरादून से हूँ, बट आर्मी फैमिली। एंड पापा ने एक वॉच दी थी जाने के टाइम पे। उस वॉच का ये मतलब था कि समय देखते रहना, लेकिन समय भी लगेगा। मुझे लगता है दोनों के लिए वो वॉच थी। वो पहन के मैं बहुत सारा अभी तो मेरे को लगा पापा बोलेंगे घड़ी लेके जाओ, समय हो जाएगा वापस आ जाओ। समझ जाएगा तो वापस आ जाना, ये भी हो सकता है। बिकॉज एक्चुअली देखा तो आर्मी लाइफ बहुत कंफर्टेबल लाइफ होती है। मैं क्यों वो एक कंफर्ट छोड़ के आईटी का जॉब ले सकता था? अगर मुझे पैसे कमाने होते कि आईटी जॉब ले लेते, भाई इंजीनियरिंग कर लेते। अगर कुछ और चाहिए होता, एक बेसिक सा, मुंबई की महंगाई में नहीं आते यहाँ पे, जो अभी भी खटकती है। चाहे जितने पैसे कमा लो, मुझे लगता है मुंबई में पैसे जितना कमाओ उतना कम है। पर हम क्यों यहाँ रुके? तो पैसे कमाने के लिए नहीं है, शायद वो तो आ जाता है। जैसे आप अच्छा काम करते रहो तो एक कुछ चीज़ है जो आपको खींचती रहती है। हम थिएटर में लगे हुए थे, बैक स्टेज करने में, चाय देने में। ये रजित कपूर के साथ में काम कर रहा था। आई थिंक उस टाइम पे यही था कि काम मिल जाए, बस किसी तरह छोटे छोटे कुछ ना करते रहे, स्टेज से लेके कैमरे में आए। देन आई थिंक व्हेन OTT आया, और आई थिंक कास्टिंग डायरेक्टर्स का भी ये, आई एम वेरी ग्लैड वो सिस्टम शुरू हुआ कि आपको फिर पर्टिकुलरली एक ऑडिशन के लिए बुलाया जा रहा है, आपको ब्रीफ किया जा रहा है, यू नो यू आर कमिंग देयर, फिर आप समझ रहे हो कैरेक्टर और ढंग से ऑडिशंस दे रहे हो। आपको 2-3 टेक्स लेगा या आपको डेटाबेस में रखा जा रहा है। आई थिंक दैट सिस्टम ने स्ट्रीमलाइन किया। और आई थिंक OTT जैसे हम सबको पता है कि कहानियाँ आई, हम सबको किरदार करने को मिले। that's amazing. Many examples today. Yeah. What about you? यार सुनो, मेरे को ना वहाँ से इशारा मत करो अभी, because they are talking. I will not stop them from talking. Let them finish and I'm gonna get up. Okay? नाराज मत हो, नाराज नहीं, हो रही नाराज नहीं हो रही हूँ मैं। I'm getting distracted. I'm trying to listen to what he's they're saying. not Please, able to- ये last question है। मैं इसके बाद खत्म कर दूंगी, but let them finish. Sorry. Yes, it's your turn. व्हाट्स क्या सवाल था? सवाल ये था कि यार बहुत लंबा सवाल। हाँ, ये वहां से आते आते सवाल ही भूल गया मैं। चुटकुले जोक से सवाल था, एक्टर, OTT। So going back, you know, your journey to where you are now. मतलब बहुत लंबी जर्नी रही है, लेकिन उसको अगर एकदम प्रिसाइज करके बताऊं, आई स्टार्टेड माय करियर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मच बिफोर आई गॉट इनटू एक्टिंग। और उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें शुरू हुई, थिएटर से मैं बहुत सालों तक जुड़ा रहा, और कई जगहों पे अलग अलग वजहों से जगहों पे इन लोगों से, रसिका और पंकज भाई से टकराया भी। इनफैक्ट मुझे याद है अभी बोलते बोलते कि कोई किसी फिल्म की स्क्रीनिंग थी, या शायद वासेपुर से भी पहले की बात है, तो वो आए, किसी को जानते थे और मैं भी आया। तो वो भी जैसे आज सहज हैं, उस समय तो उस समय भी वैसे ही थे। तो मिल मिला के ये हम मिल लिए एक दूसरे को, तो कह रहे हैं कि अरे गुरु तुम, अच्छा हाँ तुम कहाँ, अच्छा ठीक है चलो यार, है अभी टाइम, चले नीचे ज़रा। तो हम नीचे गए, आपको याद भी नहीं होगा, फन रिपब्लिक के आसपास था कहीं, तो वहाँ पे हम बैठे, फिर हम वापस आए, वो सारी चीज़ें, रसिका और मैं कहीं कुछ शॉर्ट फिल्म ये वो थिएटर से, तो वो चलता रहा चीज़ें। और अंजुम के बारे में बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन टाइम नहीं है। नहीं, जल्दी बोलो रसिका। मैं पहली बार अंजुम से मिली पृथ्वी थिएटर में। मेरे 2 सीनियर थे FTI के, वो एक अपनी शॉर्ट फिल्म नरेट कर रहे थे, और मतलब 5 साल वो डायरेक्शन स्टूडेंट्स, मतलब काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, तब आए हैं यहाँ मेक पे। मी साउंड लिटिल हम्बल आल्सो, बिकॉज़ इन योर हम्बल, इन योर स्टोरी आई एम लाइक नहीं, मैं प्रशंसा कर रही हूँ, ऐसे नहीं। तो वो अपनी शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट मुझे बता रहे थे कि ये एंड वी वांट यू टू प्ले दिस रोल। एंड शॉर्ट फिल्म में बिल्कुल कुछ पैसे नहीं, कुछ नहीं, आप मतलब जस्ट फॉर द लव ऑफ द वर्क यू आर डूइंग इट, राइट? सो आई वाज लाइक हाँ ठीक है, लेकिन मेरा ये रिहर्सल है, तो मैं वो सब ऑर्गेनाइज करके ठीक है सोचती हूँ ये वो। एंड फिर enters Anjum and Anjum sits and
ये दो फिल्म डायरेक्टर्स बड़ी पैशनेटली अपनी स्क्रिप्ट बता रहे हैं, लंबा नरेशन चल रहा है, मैं बैठ के सुन रही हूँ, और फिर उसके बाद अंजुम बोलता है नो। वेरी हम्बल अंजू। पूछा क्या हुआ? नो आई डोंट वांट टू डू इट। So they must have asked me कि कैसा लगा आपको, आप करेंगे? So मैंने सुन के बोला नहीं, शायद मुझे अच्छा नहीं लगा या जो भी है। No. He said, no, I won't do it. Okay, thank you. And he got up and he left. And those two were stumped up. They didn't know what to think. और मैं भी देख रही हूँ. They look at each other and they said, we tried. And मैंने बोला ये बड़ा गट्सी इंसान है यार. इसने आके बस उसको पसंद नहीं आई, इसने बोल दिया नहीं पसंद आई. But that's a talent to say no. Yeah. But that is one thing, you know, that I mean, on a serious note, I mean, with very few choices which we have had, I have had, there was always a thing कि यार उसमें से भी what choice would you want to make? Because No, वो I just एक want to clarify that I'm totally saying this out of appreciation. Yeah. कि I feel Yeah. कि यार मेरे Clarity पास है, इतनी I हिम्मत think होती, वो clarity- इतनी क्लैरिटी होती कि मुझे Correct, मुझे नहीं पसंद आई, मैं नहीं करूँ. As simple as that. Yeah, Continue. Sorry. because I mean नहीं think वो उस समय हम वो चीज़ नहीं कर पाए because I think in future we had to be part of such a big show together. So हाँ मतलब it's been good, lot of things, lot of flavors, colors, But I but it's think been good. because a lot of people ask कि how do you get good work? I always say कि be clear of क्या नहीं करना है फिर आपको. अगर आपके वो intention सही है कि क्या मुझे नहीं करना है तो वो बाकी आपको अच्छे इंसान, अच्छे लोग, अच्छा काम फिर मिल ही जाता है. This I'll remember. क्या नहीं करना है? ये इंटरव्यू स्टॉप नहीं करना है. Thank you guys. It was so lovely talking to you because मेरे पास time नहीं है. I had so much to talk and we can go on forever. But Yeah, thank you yeah. so much for Thank talking you, to us. thank you, thank you, Thank Thank you so much.